بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید کامران علی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے برطانوی جریدے دا اکانومسٹ میں جیل سے مضمون لکھ دیا اور اس مضمون پہ بڑی لیدے کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا اینڈ براڈ کاسٹ کے وزیر ہیں نگران، جنہوں نے بڑا شور مچایا ہوا، مرتضیٰ سولنگی، ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل سے اور وائس آف امریکہ کے اردو براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں بھی کام کرتے رہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس برطانوی جریدے کو سو کروں گا، تو کریں، شوق پورا کر لیں آپ اپنا۔ اور اس کے علاوہ آئی جی جیل خانہ جات نے ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے کہا جی جیل میں 106 کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون عمران خان نے نہیں لکھا بلکہ کسی اور نے لکھا ہے۔ چلو جس نے بھی لکھا ہو، تم تو ننگے ہو گیا نا، پورا سسٹم ننگا کر کے رکھ دیا اس نے۔ اور چلو عمران خان کا نہیں ہے تو تمہاری ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ عمران خان لکھتے ہیں کہ آج پاکستان میں وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگران حکومتیں چل رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دنوں کے اندر انتخابات نہیں کروائے گئے۔ اب ہم سن رہے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے والے ہیں، لیکن گزشتہ سال مارچ میں سپریم کورٹ کے اس حکم کے باوجود کہ ووٹ 3 ماہ کے اندر اندر دیے جائیں، یعنی کہ الیکشن کروائے جائیں، 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس سے انکار کر دیا گیا۔ عوام اس بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہیں، آگے آیا کہ الیکشن کا انعقاد ہوگا بھی کہ نہیں، اور ہوگا بھی تو قوم کو آزادانہ طور پر ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی بھی کہ نہیں، یا کسی قسم کی کوئی دھاندلی تو نہیں کی جائے گی، جس کا زیادہ خدشہ ہے۔ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے عجیب و غریب اقدامات کی وجہ سے پہلے سے ہی داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف سپریم کورٹ کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے میری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلی پسند فرسٹ چوائس کے امیدواروں کی نامزدگی کو ہی مسترد کر دیا۔ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور الیکشن کمیشن پر محض تنقید کرنے پر میرے اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے بھی چلائے جا رہے ہیں۔ مجھ پر پہلے سے ہی 200 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ انتخابات ہوں یا نہ ہوں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹنگ کے بعد جس طرح مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی ایجنسیاں، بیوروکریسی لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑیں، کسی بھی قسم کے کھیل کا میدان فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آخرکار یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ کے تحت ہماری حکومت کو برطرف کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اپنی مسلح افواج کو اڈے فراہم کرنے سے میرے انکار سے مشتعل ہو کر امریکہ نے یہ اقدام اٹھایا۔ اور انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو کے ذریعے ایک سائفر بھجوایا گیا جس میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم کر دیں۔ اور ظاہر ہے یہ سائفر کوئی میرے لیے تو تھا نہیں، جس کے لیے تھا اس نے حکومت ختم کر دی۔ میرا نقطہ نظر بالکل واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے، لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں بنیں گے۔ میں یوں ہی اس فیصلے پر نہیں پہنچا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہمیں ہونے والے بھاری نقصانات، جن میں کم از کم 80,000 جانیں ضائع ہوئیں، اس کے نتیجے پہ تھا۔ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے اہلکار
डोनाल्ड लू ने एक साइफर भिजवाया, वहाँ वाली हुकूमत ख़त्म करवा दी गई। मैंने बाद में उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम को डिकोड किया और बाद में काबीना में पढ़ के सुनाया। साइफर मैसेज में जो कुछ कहा गया था उसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि अमेरिकी एहलकार का वो पैगाम मेरे लिए नहीं था, बल्कि जिसके लिए था उसने न सिर्फ हमें वजारत उज़्मा से हटाया, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही हुकूमत का तख्ता भी पलट दिया। और मुझे पता चला कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए हमारे इत्तेहादियों और पार्लियामेंट्री बैक बेंचेस पर कई महीनों से हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ लोग सड़कों पर निकला है और अगले चंद महीनों में PTI ने 37 में से 28 ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियां निकाली, जिससे ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अवाम कहाँ खड़ी है। इन रैलियों ने ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाया और उनको इस सतह पर राग़िब किया कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और इन सब को देखते हुए तमाम ताकतवर हल्के बेचैन हो गए जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम किया था या हमारी हुकूमत को हटाने के लिए किसी भी किस्म की मदद फराहम की थी। उनकी घबराहट में इजाफे के लिए हमारी जगह लेने वाली इंतजामिया ने मईशत को तबाह और बर्बाद करके रख दिया, जिससे 18 माह के अंदर गैर मामूली अफराद ज़र और करेंसी के कदर में कमी वाक़या हुई। इसका फ़र्क सबके लिए वाज़ेह था। PTI हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि कोविड-19 जैसे वबाई मर्ज से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर तारीफें भी समेटी थीं। इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% की हकीकी GDP नमो की सूरत में फ़रोग़ दिया था। बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था कि मुझे दोबारा इक़्तिदार में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के लिए तमाम तरीक़े इस्तेमाल किए गए, हत्ता कि मेरी ज़िंदगी पर 2 बार कातलाना हमले भी हुए। मेरी पार्टी के रहनुमा कारकुनों और सोशल मीडिया कारकुनों को मुआविन सहाफ़ियों के साथ अगवा किया गया, कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, चादर और तार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, औरतों की बेहुरमती की गई और PTI छोड़ने के लिए दबाव डाला गया। इनमें से बेशतर लोग अभी भी जेलों में बंद हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अदालतें जमानत देती थी, लेकिन जमानत मिलने के बावजूद उनको दोबारा तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, 5वीं दफ़ा, 6 बार उनको दोबारा से दोबारा गिरफ्तार किया जाता रहा और उन पर नए नए इल्ज़ाम लगाए जाते रहे। इससे भी बदतर बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश में PTI ख़वातीन रहनुमा और कारकुनों को डराने और धमकाने के लिए अपने रास्ते से हट गई। मुझे तकरीबन 200 से ज़्यादा कानूनी मुकदमात का सामना है। खुली अदालत में आम ट्रायल से भी इनकार कर दिया गया है। 9 मई 2023 को एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें दीगर चीज़ों के अलावा फौजी तनसीबात में आशीष जदगी और जिना हाउस को जलाने का इल्ज़ाम PTI पर लगाया गया, जिसके नतीजे में 48 घंटों के अंदर कई हज़ार गिरफ्तारियाँ, अगवा और मुजरिमाना इल्ज़ाम आयद किए गए और बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत 9 मई को स्नाइपर शूटर खड़े करके 25 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई। इस रफ्तार ने जाहिर किया कि यह पहले से मंसूबा बनाया जा चुका था। इसके बाद हमारे बहुत से रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनसे या उनके अहले खाना से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जो टेलीविज़न पर हर एक ने देखा कि बाकायदा तौर पे इंजीनियर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में
ये बताया कि वो पार्टी को छोड़ रहे हैं, और न सिर्फ पार्टी को छोड़ रहे हैं बल्कि मुझ पर भी न जाने क्या क्या इल्जाम आयद किए गए। कुछ को दूसरी नई बनने वाली सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर किया गया, और हत्ता कि उन्हें यह भी मजबूर किया कि वो मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे सकें कि यह सारा प्लान मेरे अंडर जमान पार्क में तैयार हुआ था। इन सब के बावजूद पीटीआई मकबूल है। दिसंबर में होने वाले कोलिशन 38 के पोल में 66% हिमायत के साथ मेरी जाती मंजूरी की दर्जाबंदी इससे भी कहीं ज्यादा है। अब इलेक्शन कमीशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम करने के लिए हर तरह के गैर कानूनी चालों में मुलव्वस है। अदालतें रोज बरोज अपना एतबार खोती नजर आ रही हैं। दुनिया सुना करप्शन के इल्जाम में साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आ गए, और जिस तरह आए हैं और जिस तरह उनको लाया गया यह हर बंदा बखूबी जानता है। जहां वो पाकिस्तानी इंसाफ से मफरूर की हैसियत से रह रहे थे, नवंबर में एक पाकिस्तानी अदालत ने सजा को कलअदम करार दे दिया। मेरा यकीन है कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुआहदा किया जिसके तहत वो उनकी बर्रियत की हिमायत करेगी और इंतखाबात में अपना विजन उनके पीछे डालेगी। लेकिन अब तक अवाम पीटीआई की हिमायत को किसी भी सूरत में मुस्तरद करने के लिए तैयार नहीं है। इन हालात में 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं। पीटीआई के अलावा तमाम जमातों को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त है। मैं गद्दारी के मुज़हका खेज़ इल्ज़ामात में कैद तन्हाई में जेल काट रहा हूँ। हमारी पार्टी के वो चंद रहनुमा जो आज़ाद रहते हुए और अंडरग्राउंड नहीं हुए, उन्हें मुकामी वर्कर्स कन्वेंशन भी मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं है। जहाँ पीटीआई के कारकुन इकट्ठे होने में कामयाब होते हैं, उन्हें पुलिस की वहशियाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए भी तो वे एक तबाही और एक मजाक साबित होंगे, क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उसके बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकामात का बायस बनेगा और ये मजीद गैर मुस्तहकम होता चलेगा और मईशत इसके नतीजे में मजीद तबाह होती चली जाएगी। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात हैं, जो सियासी इस्तेहकामात और कानून की हुक्मरानी को वापस लाने के साथ साथ एक मकबूल मैंडेट वाली जमहूरी हुकूमत की जानिब से अशद ज़रूरी इस्लाहात का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान के पास अपने आप को दरपेश बहरानों से छुटकारा पाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए हम इन तमाम महाजों पर मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। यह था वो कॉलम जो इमरान खान ने लिखा और बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट ने इसको अब तक 8 से ज़्यादा मरतबा शाया कर चुके हैं। वो इस आर्टिकल के छपने के बाद इकोनॉमिस्ट की रेटिंग कहाँ से कहाँ चली गई है, ये इकोनॉमिस्ट वाले ही बता सकते हैं। अरे पाकिस्तान का तो वो हाल है कि मलकू जैसा गुलकार इमरान खान के लिए गाना गाए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जहाँ पे इस किस्म की हिमाकतें हो रही हों, वहाँ पे इंतखाबात का क्या मकसद रह जाता है। और ये आर्टिकल तो पहले छपा, उसके बाद अब आप देखें जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को तमाम इल्ज़ामात और तमाम मुकदमात से बरी कर दिया और ताहयात नाअहली भी ख़त्म कर दिए, ये आप बेहतर जानते हैं। कैसी अजीब बात है कि एक मफरूर मुल्ज़िम अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहा और इस मुल्क का मौजूदा चीफ जस्टिस जब उन पे केस चला था तो वो भी अपनी मनी ट्रेल देने में नाकाम रहा था।
اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے لیے بہتری فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔